Good morning, dear students. In the previous class, we had started with the topic of carbohydrates. We said that carbohydrates include three types of carbohydrates, that is monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Out of which monosaccharides and oligosaccharides have relatively simple conformation and lower molecular weight, due to which these both are included in the micromolecules, whereas the polysaccharides are more complex with more molecular weight and complex conformation structure, and therefore they are included in the next, that is macromolecules. So here, as we are discussing about micromolecules first, we will discuss about monosaccharides and oligosaccharides firstly. Monosaccharides were known as simple sugars. They are easily soluble in water and along with it they have lower molecular weight. They are simple monomeric structures and these include triose, tetrose, pentose and hexose as well as heptose sugars. We had said that both pentose and hexose sugars are found in two forms, that is either chain form or a ring form. दोनों ही फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं, चेन फॉर्म में भी और रिंग फॉर्म में भी. और जो रिंग होती है वो दो तरह की होती है, either the ring can be a pyranose ring or the ring can be a furanose ring. पायरेनोस रिंग जो होती है उसमें रिंग में 5 कार्बन्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, जबकि फ्यूरानोस रिंग में 4 कार्बन्स और एक ऑक्सीजन होता है. We also said that these sugars can be either alpha sugar or beta sugar, in which we had taken an example of the glucose for the reference purpose. Now, as we said that these monosaccharides includes different types of hexose sugar. तो जो hexose sugar की हमने बात की थी उसमें से जो fructose है, the fructose is known as the fruit sugar. Fructose को कहा जाता है fruit sugar and it is naturally occurring sweet. Naturally it is found to be sweet, right? तो जो fructose sugar है, ये fructose sugar fruits में देखने को मिलती है, इसीलिए इसे fruit sugar कहा जाता है except grapes. और ये naturally ही sweet होते हैं, तो fructose is a type of keto sugar. मैंने पहले भी कहा है कि sugars जो होते हैं, sugar either can be an aldose or it can be ketose. aldose sugar तब कहते हैं जब फर्स्ट पोजीशन पे aldehyde ग्रुप होता है और जब इंटरमीडिएट पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होता है तो उस शुगर को हम कीटो शुगर कहते हैं. तो यहाँ पे फ्रुक्टोज जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ द कीटोज शुगर. ओके, सो इट विल बी हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक CH2OH. at the next position there will be CO, then there will be OH, C, H. At the fourth position H, C, OH, H, C, OH and again CH2OH. तो आप देख सकते हो कि कीटोन ग्रुप कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है. अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो इट वुड बी एट द फर्स्ट पोजीशन. तो ऐसे शुगर जिसमें कीटोस ग्रुप आता है उसे कहा जाता है कीटोस शुगर. तो हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं उनमें फ्रुक्टोज नॉर्मली प्रेजेंट होता है, राइट. देन इफ वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर. ग्लूकोज इज नोन एज ब्लड शुगर क्योंकि हमारे ब्लड में जो शुगर डिटेक्ट होती है वो होती है ब्लड शुगर, राइट. वी ऑल आर हैविंग द फूड. तो फूड जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से ग्लूकोज जो है that circulates in our blood and it is sent to liver for the storage. तो हमारे ब्लड में certain amount of glucose is always present and it is also present in fruits like grapes. Present in fruits like grapes. तो ग्लूकोज है उसे ग्लूकोज है
हेक्सोस शुगर के एग्जाम्पल्स थे। और ये हेक्सोस शुगर्स जो है वो बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एज वेल एज पेंटोस शुगर भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड जो है वो बनते किसमें से है? मोनोसैकेराइड से। सो ओलिगोसैकेराइड्स विल बी हैविंग 2 to 9 monosaccharides, 2 to 9 monosaccharides formed by formation of glycosidic bond। तो जब 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से लिंक होती है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वो स्मॉल जो चेन बनी अबाउट 2 to 7 मोनोमरिक मोनोसैकेराइड्स की जो छोटी एक चेन बनती है, उस चेन को कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओके, सो ओलिगोसैकेराइड्स विल बी मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स ओनली, but 2 to 9 monosaccharides will together combine to form a single oligosaccharides. Oligosaccharides are divided into further types, and the simplest type of oligosaccharide is disaccharide. The simplest type of oligosaccharides is disaccharides. Okay, तो जो oligosaccharides होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होके क्या बनता है? डाइसैकेराइड। 3 मोनोसैकेराइड हो तो बनता है ट्राइसैकेराइड। अगर 4 है मोनोसैकेराइड तो बनता है टेट्रासैकेराइड, लाइक दैट। बट मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि माल्टोज। तो माल्टोज जो है इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मतलब जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स they attach to each other by loss of a water molecule, they will be forming maltose. माल्टोज जो है उसे माल्ट शुगर कहा जाता है, और ये जो बार्ली और ग्रेन्स होते हैं उनमें ये माल्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन 2 sugars, right? So H OH H OH OH and H, again over here also HOH, तो ये हम जो देख रहे हैं बीच में ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बनता है 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में बाय अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ग्लूकोज है, ये भी एक ग्लूकोज है, राइट? पर ये दोनों ग्लूकोज के बीच में क्या हुआ है? देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे भी OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, राइट? सो OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H2 रिमूव हो जाता है, और जो ऑक्सीजन बचता है वो यहाँ पे दोनों के बीच में शेयर हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डाइसैकेराइड बोलते हैं, जो 2 शुगर के कॉम्बिनेशन से बना है। सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ द डाइसैकेराइड माल्टोज। ऐसे ही दूसरे डाइसैकेराइड्स भी कॉमन है, जैसे कि लैक्टोज। तो लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर, क्योंकि ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड देयरफॉर इट इज नोन एज मिल्क शुगर। द लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ galactose plus glucose. It is formed by the combination of the galactose with the glucose. The third type of
sugar disaccharide is sucrose. सुक्रोज जो है उसे केन शुगर या तो बीट शुगर भी कहा जाता है, केन शुगर और बीट शुगर, क्योंकि जो बीटरूट होता है उसमें लैक्ट सुक्रोज होता है और केन मतलब हम जो शुगर केन खाते हैं वो शुगर केन में भी सुक्रोज इज द स्वीटनिंग एजेंट, सुक्रोज इज द शुगर एंड सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस fructose. It is formed by a combination of glucose plus fructose. So as you can see कि oligosaccharides जो है वो monosaccharide के combination से बनते हैं। ये oligosaccharides जो है वो minimum 2 monosaccharides से लेके 9 monosaccharides unite हो तब तक की small chains बनाते हैं। पर biologically जो important है वो सबसे ज्यादा important है disaccharide। और डाइसैकेराइड में हमने 3 एग्जांपल देखे, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ द डाइसैकेराइड्स। ओके, वैसे ही ट्राइसैकेराइड्स भी होते हैं, टेट्रासैकेराइड्स भी होते हैं, बट दे आर लेस कॉमनली फाउंड इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ही कम सोर्सेस में बाकी सारे शुगर्स देखने को मिलते हैं। So next we will talk about the topic polysaccharides. So we have discussed about the 2 types of carbohydrates, that is monosaccharides and oligosaccharides. We discussed that monosaccharides were monomeric units of sugars, whereas oligosaccharides are made up of about 6 to 7, maximum 7 units of monosaccharides will be uniting or polymerizing to form an oligosaccharide. But both monosaccharide and oligosaccharide are considered to be simple as they are soluble in water and they can even pass through the plasma membrane and their molecular weight is very less. Therefore, they were found in the acid soluble pool and we can say that these are having a very simple conformation. But when we talk about polysaccharides, which are the 3rd type of carbohydrates, they are macromolecules and they will be obtained in the acid insoluble fraction. तो जो हम सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें 3 टाइप हो गए। उनमें से मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल पूल में मिलता है, बिकॉज पॉलीसैकेराइड्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स, and therefore polysaccharides will be found in acid insoluble fraction during a chemical analysis. So what are polysaccharides? Polysaccharides are also formed by polymerization of monosaccharides, but there should be at least 10 monosaccharides, minimum 10 monosaccharides to consider it as a polysaccharide. पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और लार्ज साइज होते हैं that they are not soluble in water and therefore उनका मेन फंक्शन या तो स्टोरेज या तो कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का रहता है। तो पॉलीसैकेराइड्स जो हैं उनके बारे में हमें नेक्स्ट जो चीज कंसिडर करनी है that polysaccharides are long chains of sugars and therefore they are also known as glycans. They are also known as glycans. The another word used for polysaccharide is glycans. Now these polysaccharides are of 2 types and they are polysaccharides are of 2 types and these are homopolysaccharides and secondly
मतलब अगर एक ही मोनोसैकेराइड रिपीट होता जाता है तो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाता है, राइट। सो होमोपॉलीसैकेराइड्स, द रिपीटिंग यूनिट is the same monosaccharide। मतलब अगर ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है तो रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज ही रहेगा। ग्लूकोज इज गोइंग टू बी रिपीटेड फॉर मेनी टाइम्स टू कॉल इट एज अ होमोपॉलीसैकेराइड। पर जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं स्टार्च विच इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो उसमें रिपीटिंग यूनिट जो है वो सिर्फ ग्लूकोज ही है। Though it is repeated for lakhs of times, but still the repeating unit remains the glucose, and so such a polysaccharide is called homopolysaccharide। But heteropolysaccharide जो होता है, another example is glycogen, ये भी homopolysaccharide है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम heteropolysaccharides की बात करें तो heteropolysaccharides will be having two or more different monosaccharides as repeating units, as the repeating unit। तो यहाँ पे repeating unit जो है it is going to be two or more monosaccharides, मतलब ग्लूकोज की चेन नहीं, ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज और दूसरे शुगर जैसे कंबाइन होकर अगर चेन बनती है, मतलब अगर पॉलीसैकेराइड में दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड के अलग अलग यूनिट्स हैं तो उसे कहा जाता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल the chitin that you have studied which is found in the exoskeleton of the arthropods, ये chitin जो है that is going to be an example of the heteropolysaccharides। तो homopolysaccharides में रिपीटिंग यूनिट सेम रहता है और heteropolysaccharides में रिपीटिंग यूनिट चेंज होता है, तो उसे heteropolysaccharides कहते हैं। Now next thing we need to understand about the polysaccharides is that they are insoluble in water. Another thing is that they have higher molecular weight and impermeable to the plasma membrane। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से ये पॉलीसैकेराइड्स पास नहीं हो सकते। ग्लूकोज जो है दैट इज अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड इट कैन इजीली एंटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। बट अगर पॉलीसैकेराइड है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए पॉलीसैकेराइड का मेन रोल जो है आइदर स्टोरेज या तो स्ट्रक्चर। इसीलिए अगर हम फंक्शन मेंशन करें तो फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड विल बी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और यू कैन से स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो स्टोरेज मतलब क्या? वी ऑलरेडी नो दैट इन प्लांट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। तो प्लांट जो है वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च क्या हुआ? स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड और वो एक स्टोरेज यूनिट भी हुआ। Animals will be storing the food in the form of glycogen। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड तो है पर वो किस फॉर्म का है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, क्योंकि वो हमारी बॉडी में लीवर या तो मसल्स में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड्स को स्टोरेज कहा जाता है, जबकि ऐसे भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कोई ना कोई स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में हम इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जबकि हम स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल मतलब जो किसी के स्ट्रक्चर में आता हो, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं काइटिन का, क्योंकि काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिजम्स के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट है, तो वो एक स्ट्रक्चरल लेयर फॉर्म करता है, इसलिए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा हम ले सकते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वो कॉटन में या तो हम कह सकते हैं पेपर में होता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज फाइबर, सो इट इज फॉर्मिंग अ
राइट। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स जो है दे आर हैविंग सम स्ट्रक्चरल और गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म और फॉर्मिंग सम स्ट्रक्चर। तो उसमें आ जाएगा काइटिन एंड सेल्यूलोज, जबकि स्टोरेज में आएगा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इन दोनों के अलावा देयर आर थर्ड टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आल्सो, जिन्हें हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स। तो ऐसे जो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल द अगार दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, राइट। अगार जो है वो सीवीड्स में से मिलता है, जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो अगार इज सच अ सब्सटेंस दैट यू गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। वेरी इजी एग्जांपल ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज व्हेन यू कट द लेडीज फिंगर वेजिटेबल और यू कैन से ओकरा, तो उसमें आपको एक स्लाइमी फ्लूइड देखने को मिलता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनमें पॉलीसैकेराइड्स का जो रोल है वो कैसा रोल है, आइदर स्टोरेज के लिए या तो कोई स्ट्रक्चर के लिए, और इट विल बी प्रेजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ सम वेजिटेबल्स और इट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम प्लांट्स। Okay, so in the next lecture we will be talking about the structure of starch and glycogen, and that is how we will complete the first topic of carbohydrates. इसके बाद हमें एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करना है।